Yeah, so welcome everybody. And really thank you so much for joining this call. Yeah, I'd like to give a short introduction of Dr. Lisa Balsara, uh, of her background and like what a privilege it is for her to have her on the call. So she's completed her pediatric hemato-oncology fellowship from Mumbai, MCGM, CTC, PHO Mumbai. She specializes in comprehensive care of thalassemia, then various benign hematological disorders, pediatric oncology diagnosis and treatment, oncological emergencies, and she's also a bone marrow transplant physician, uh, so who does autologous and allogeneic bone marrow transplant. She has participated in various national and international conferences and has keen interest in clinical research. She has multiple publications in national and international journals. She's authored a very unique book called the Pediatrics Drug Doses Book and has co-authored 5 patent publications under the government. So really, it's an honor having you on the call again, Dr. Lisa. And just for your knowledge, for all the people in the audience, this call is an extension of the last call that we had, which was on thalassemia, for how to diagnose thalassemia, what are the treatment options, and how to manage it. This call specifically, we will focus on bone marrow transplant as a curative option for thalassemia, how so many people across the world have benefited by undergoing a bone marrow transplant for their thalassemia. This conversation will be in Hindi and English. So please don't worry, stay with us, and she's an excellent speaker. So obviously she'll be able to answer all the questions also. So over to you, ma'am, for just taking it over from here. Thank you so much, sir. So can I share my screen? Please go ahead, ma'am. Yeah. Is the slide visible, audible? Yes, it is visible and audible both, ma'am. Okay. So आज हम शुरू करते हैं. The today's topic is one of the most interesting topics because इसके बारे में इतने myths है और इतनी misinformation है जिसको break करना बहुत जरूरी है. And what better platform than this to break all the myths? So currently, if we know and if we see in India, bone marrow transplant is the only cure available. हम क्योर की बात कर रहे हैं. लास्ट टाइम हमने केयर कर्व की बात कर दी थी. So, Neeraj sir, every year on World Thalassemia Day, we have a drawing competition. And Okay. every year, one of our patient, his name is Nitesh Pahuja, and he makes this wonderful paintings and one wins the first prize always. Amazing. And every year we wait for 8th of May for his painting to come. Oh, So wow. अगर आप देखोगे कि this is hand painted thing, मतलब इट इज एन एक्चुअली हैंड पेंटेड थिंग जहाँ पे एक बच्चे का पूरा थैलेसीमिया का एक पिक्चर हमें दिखाया गया है. एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर नितेश फॉर हैविंग दिस टैलेंट एंड शोइंग इट अक्रॉस. तो आप Yeah. देखोगे कि करंटली इंडिया इज वर्ल्ड थैलेसीमिया कैपिटल, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे. इट इज पेनफुल. एक हाथ से ब्लड जाता है, दूसरे हाथ से पंप लगा है उसको. डेसीरॉक्स का ब्लड की शॉर्टेज है. ओनली 10% ऑफ पीपल आर डोनेटिंग ब्लड. एंड देन एवरीथिंग शॉर्ट लाइफ स्पैन है, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है. ये सारी चीजें हम अभी भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं. द पिक्चर्स हैव नॉट बीन वेरी ब्यूटीफुल अक्रॉस द ग्लोब इन अ वेरी यूनिवर्सल मैनर. कुछ जगह पे अच्छे हैं, कुछ जगह पे पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर एवरीथिंग. So next year again we had a drawing competition. He sent us this painting जहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि डेसिरॉक्स पंप आयन चेलेशन मेथड. आप देख रहे हो कि एक फैमिली में दो दो भाई बहन को हो रहा है. हम प्रिवेंशन का नाम लेते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं. ये सारी चीजें हम Wow. कर रहे हैं. बच्चा चाहता है एक नॉर्मल लाइफ जीने का, लेकिन वो ब्लड चेलेशन डोनर्स ढूंढ ढूंढ के परेशान है. सो इन दैट केस हमने पहले तो क्या किया, ये पिक्चर को थोड़ा सुधारने के लिए वी स्टार्टेड अ डे केयर in Ahmednagar, Anand Rishi Thalassemia Daycare, where we made leucofilters free of cost, chelation,
उनको इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीजें हमने, एंड वी हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, वी हैड वेरी गुड नंबर्स, लोगों के फेरिटिन कम होने लगे, स्प्लीन कम होने लगे. वी रेप्लिकेटेड द सेम मॉडल इन पुणे, विच इज रुधिर दी लाइफलाइन द डे केयर. ये हमारा संजीवन हॉस्पिटल पुणे में है. यहाँ पे भी हम ब्लड या फिर कोई भी सेवा जो हम कॉम्प्रिहेंसिव केयर की दे रहे हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, to give the adequate amount of treatment and everything else. So now coming to the bone marrow transplant, first thing we will have to understand the basic requisite जो एक transplant के लिए लगता है, वो है 12/12 HLA रिपोर्ट. अगर मैं एक ट्रांसप्लांट कैंडिडेट हूँ और मेरे को अपना ट्रांसप्लांट कराना है, द चांसेस ऑफ मी मैचिंग द HLA विथ माय ओन ब्रदर, मेरे सगे भाई के साथ, इज लेस देन 25%. मेरे माँ बाप के साथ मेरा मैच होना, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उसके साथ अगर उनकी रिश्ते नातों में शादी नहीं है, तो लेस देन 1%, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता, रिश्ते नाते में शादी नहीं होती है. अगर रिश्ते नाते में शादी है, आत्याची मुली, मामाचो मुलगा, ऐसे करके लोग शादी हुई है, तो चांसेस 3 to 5%. नॉर्मली एज हम 12 साल के अंदर अंदर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर 12 साल के बाद उनका ट्रांसफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है, फेरिटिन लेवल बढ़ जाता है, स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है. तो दिस इज द रेक्विजिट विच वी टेक. आपने क्या एक्सपेक्ट करना है एक ट्रांसप्लांट से पहले, ये चीज समझ लेनी है कि नॉट एवरी पेशेंट इज अ कैंडिडेट फॉर ट्रांसप्लांट. मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था कि इट इज नॉट जस्ट ट्रांसप्लांट. आपको अपना फेरिटिन, स्प्लीन का साइज, लिवर का साइज मेंटेन और एडिक्वेट रखना है, क्योंकि अगर आप ट्रांसप्लांट कैंडिडेट नहीं भी हो, तो कल चल के अगर जीन थेरेपी आ रही है या कोई नया ड्रग मॉलिक्यूल अवेलेबल है, और उसको यूज करने के लिए भी आपको एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट में आना है. If you are not there in an eligible candidate list, then it will become very, very difficult for us to do the remedial measures and then put you in a trial. अगर आप मेरे पास ट्रांसप्लांट के लिए आओगे, द मेडिकल टीम विल असेस योर एज, आपकी जनरल कंडीशन कैसी है, आपकी स्प्लीन साइज, सीरम फेरिटिन, डायग्नोसिस में आप ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, या आपको सेल्डम ट्रांसफ्यूजन लग रहा है, आपकी पहले की ट्रीटमेंट कैसी चल रही है, आपको डेसिरॉक्स कितना चल रहा था, कैल्फर कितना चल रहा था, आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लग रहे थे कि नहीं, ये सारी चीजें आपकी एसेस की जाएगी. फिर हम जेनेटिक मार्कर्स डोनर मैचिंग के लिए करेंगे, जैसे कि HLA की रिपोर्ट, और हमारे वायरल मार्कर्स भी मैच होने चाहिए. अगर आप CMV नेगेटिव हो, तो आपका डिनर प्रेफरेबली CMV नेगेटिव होना चाहिए. आपको कोई भी जात का हेपेटाइटिस, HIV, HBS, AG, ये सारी चीजें पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, और डोनर की भी नहीं होनी चाहिए. सो ऑल द वायरल मार्कर्स विल बी टेस्टेड. ब्लड वर्क किया जाएगा, डोनर का भी प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप किया जाता है, जिसमें CBC, LFT, RFT, 2D को, एक्सरे, जैसे वायरल मार्कर, CMV, ये सारी चीजें की जाती है. उनका एक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस भी किया जाएगा. वी आर ओके अगर आपका डोनर माइनर है, तो माइनर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनर बन सकता है. और ये सारी जांचें पेशेंट के लिए भी की जाएगी. पेशेंट के लिए एडिशनली हम सीरम फेरिटिन लेवल, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये सारी चीजें करें. BMT रूम कुछ ऐसा ही दिखता है. एक पेशेंट का बेड रहता है, और एक पेशेंट के रिलेटिव का बेड रहता है. आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया जाएगा. इट विल बी अ कंप्लीटली एयर कंडीशन रूम. अगर आप ऊपर सीलिंग पे देखोगे, तो आपको एक खिड़की जैसा दिखाई देगा, दैट इज नोन एज HEPA फिल्टर. HEPA फिल्टर ये है कि जो कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन अगर BMT रूम में आता है, तो वो सक्शन करके बाहर निकाल देता है. कोई भी रूम में ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता. वी हैव अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो BMT रूम के लिए लगती है, कि रूम पैक होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, और उसका टेम्परेचर इतना ही रहना चाहिए, HEPA फिल्टर रूम रहना चाहिए, अटैच टॉयलेट बाथरूम चाहिए. इसीलिए BMT रूम हर हॉस्पिटल में नहीं बन सकता. उसके लिए एक स्पेसिफिक इंडिकेशन जगह भी रहती है. वो द पीपल हु आर मैनेजिंग इट नोज इज बेटर. अभी BMT का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. हम सबको पता है खेती कैसे होती है. तो एक जमीन होती है, हम उस जमीन को बोते हैं, उस जमीन में हम बीज डालते हैं. वो बीज धीरे धीरे करके सनलाइट और पानी की मदद से बड़ा होता है और पौधा हो जाता है.
दिस इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अगर हम मोटा मोटा देखे जाए तो ये पूरा एक नेचुरल ट्रांसप्लांट ही चल रहा है यहाँ पे। अगर मेरे पास आज एक पेशेंट आता है, समझ लो 1 नवंबर को मैं किसी पेशेंट को एडमिट करती हूँ बीएमटी में, तो फर्स्ट दिन उसको हम डे -7 बोलेंगे। हम एक हिकमन इंसर्शन करेंगे। हिकमन इंसर्शन का लाइन कुछ ऐसे दिखता है। इसके 3 पोर्ट रहते हैं, एक रेड रहता है, एक व्हाइट रहता है, और एक एंटीबायोटिक के लिए ब्लू पोर्ट रहता है। ये पोर्ट जब हम लोग, ये लाइन जब हम डाल देते हैं, हम बच्चे को बार बार प्रिक नहीं करते। तो सैंपलिंग भी इसी से होगा, ब्लड चढ़ाना भी इसी से होगा, कीमो भी इसी से दिया जाएगा, बच्चा प्रिक फ्री हो जाएगा। हम फर्स्ट दिन उसको लाइन डाल देंगे। फिर हम अपने कीमोथेरेपी के अनुसार, कीमोथेरेपी 1 या 2 घंटे का इंजेक्शन रहता है। और ये कीमोथेरेपी इसलिए दी जाती है कि अगर मैं इस रूम में, समझो कि मुझे किसी रूम में सामान लाना है, तो मुझे उस एग्जिस्टिंग सामान जो ऑलरेडी उस रूम में सामान है, या तो मुझे बेचना पड़ेगा, या तो मुझे उसको जलाना पड़ेगा। मुझे कुछ ना कुछ अभी का जो सामान का है करना पड़ेगा, तो ही मैं नया सामान ला पाऊंगी। बेसिकली अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, एक नया बोन मैरो मुझ में बने, तो मुझे पहला बोन मैरो नष्ट करना पड़ेगा, जो कीमोथेरेपी के द्वारा मैं करूंगी। ये कीमोथेरेपी 7 से 10 दिन का प्रोटोकॉल रहता है, 1-1, 2-2 घंटे के इंजेक्शन रहते हैं। आप जैसे ही एडमिट होगे 1 नवंबर को, तो मैं सेकेंड या थर्ड, 3-4 दिन के बाद जो डोनर होगा, समझो मेरा ट्रांसप्लांट चल रहा है, मेरे भाई का है, उनको मैं एक छोटा सा, जैसे कि हम वैक्सीन देते हैं लसीकरण, वैसा एक मैं इंजेक्शन दूंगी। ये इंजेक्शन उनके स्पेसिफिक डब्ल्यूबीसी के काउंट बढ़ाएगा। इसको हम बोलते हैं डोनर जीसीएस। फिर 7 दिन के बाद मैं वो डोनर को एडमिट करूंगी। सुबह वो आएगा डोनर मेरे पास। मैं उनको अफेरेसिस के लिए, उनके स्टेम सेल जो मुझे वो डोनेट करने वाले हैं, वो प्रोसीजर में चालू करूंगी। ये बिल्कुल भी ओटी में ना होने वाला प्रोसीजर है। पूरे प्रोटोकॉल में डोनर ओटी में नहीं जाता है, अगर वो पेरिफेरल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है तो। अगर डोनर की नसें अच्छी है, डोनर बड़ा है और डोनर की नसें अच्छी है, तो हम 2 इंट्राकैथ लगाते हैं। एक इंट्रा एक इंट्राकैथ से ब्लड वो मशीन के द्वारा कनेक्टेड रहता है। वो मशीन में ब्लड घूमता है, और बाकी बचा हुआ जो सेल्स उसको लेने हैं, वो लेके वो बाकी बचा हुआ ब्लड दूसरे इंट्राकैथ से वो वापस से वो डोनर को दे देता है। ये एक ये 3 से 4 घंटे की प्रोसीजर रहती है। इसमें डोनर खाना खा सकता है, डोनर मोबाइल देख सकता है, डोनर सो सकता है, डोनर को जो चाहिए। कभी कभी तो हमारे डोनर्स इतने अच्छे होते हैं कि वो मूवीज भी देखते हैं, ऑफिस का काम भी कर लेते हैं, 3-4 घंटे क्या करने का ये करके, तो वो अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। डोनर को इसमें तकलीफ नहीं होती। फिर नेक्स्ट दिन डे 0 पे हम ये स्टेम सेल इन्फ्यूजन करते हैं। जैसे कि आपको ब्लड चढ़ाया जा रहा है हर महीने, वैसे ही हम ये स्टेम सेल इन्फ्यूजन करते हैं। फिर 7 दिन के अंदर अंदर आपके डब्ल्यूबीसी नॉर्मल होना चालू हो जाते हैं। मतलब 1000-2000 उस रेंज में आते हैं, 500 से 2000 की रेंज में आना शुरू हो जाते हैं। 7 दिन से 14 दिन लगते हैं ये प्रोसेस के लिए, जिसको हम डब्ल्यूबीसी एनग्राफ्टमेंट बोलते हैं। डे +14, जिस दिन से स्टेम सेल इन्फ्यूज किया है, उस दिन से 14 दिन तक वो प्लेटलेट एनग्राफ्टमेंट होना शुरू हो जाता है, जो 21 दिन से कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप समझते हो, तो टोटल बीएमटी स्टे इज 30 डेज, जहां पे पहले के 7 दिन और एनग्राफ्टमेंट प्लेटलेट के 21 दिन जब हम पकड़ते हैं, तो वो मोटा मोटा 28 से 30 दिन आपको उस बीएमटी रूम में रहना पड़ेगा। नियर बाई सेंटर, वो जिस सेंटर में आप करा रहे हो, उसके सेंटर के आसपास आपको 100 डेज रहना पड़ेगा फ्रॉम द टाइम ऑफ डे 0। ये तो बहुत अच्छा अच्छा मैडम ने बोल दिया, ये तो एकदम ही स्मूथ स्मूथ लग रहा है। ऐसा नहीं है। ये जिस दिन हम स्टेम सेल इन्फ्यूज करते हैं, उसको डे 0 इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस दिन डब्ल्यूबीसी, अगर आप उस दिन का सीबीसी देखोगे और उसकी स्लाइड देखोगे, तो डब्ल्यूबीसी उस दिन ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। उस बच्चे की हम रोग प्रतिकारक शक्ति पूर्ण तरीके से नष्ट कर चुके हैं कीमोथेरेपी से। इसीलिए भले आप बीएमटी में हो, आपको फीवर हो सकता है, आपको छोटा मोटा, जिसको मुझे इतने वायरस ना लगे, आपको छोटा सा एक वायरस भी बहुत बड़ा इन्फेक्शन कर सकता है। इसके लिए
हाँ बीएमटी में हो, मैं बीएमटी ट्रेंड इंसान हूँ, मुझे ये सब पता है, तो हम तुरंत के तुरंत आपको एंटीबायोटिक चालू कर देंगे। GVHD, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, क्योंकि मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति नष्ट हो चुकी है, ऐसा हो सकता है कि मेरे फिर भी मेरे भाई के सेल्स जो है वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुझे स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, मुझे लूज मोशन हो सकते हैं, मुझे लिवर पे सूज आ सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट डिजीज, भले मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो पहचान जाए कि ये मेरे भाई के सेल्स है, ये कोई फॉरेन की चीज है जो मुझे दी गई है, और मेरी जो बच्ची कुची रोग प्रतिकारक शक्ति है वो मेरे भाई के सारे स्टेम सेल जो इन्फ्यूज किए गए हैं वो मार डाले। उस जगह पे ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है, आप जो थैलेसीमिया थे वो वापस थैलेसीमिया ही रह जाओगे और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं जितनी भी हायर लेवल की एंटीबायोटिक्स दे दूं, जितना भी जीवीएचडी प्रोफाइलैक्सिस या जीवीएचडी के अगेंस्ट मेडिकेशन दे दूं, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति इसको रिस्पॉन्ड ना करे, और आप आईसीयू में भी जा सकते हैं। एंड एवरी ट्रांसप्लांट, अगर आप दांत भी निकालते हो, अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन करते हो, उसमें भी डेथ का रिस्क रहता है। तो ट्रांसप्लांट तो बहुत बड़ी चीज है, इसमें भी मोर्टालिटी का रिस्क रहता है। Every transplant comes with a mortality risk of 5 to 10%, GVHD risk of 10 to 15%. But if everything goes well, the success ratio of a bone marrow transplant in a very good thalassaemic child who is well preserved and well transfused, well chelated, the success ratio is 95%, which is a very good success ratio. आज ये लेक्चर होगा कि नहीं, मैं अवेलेबल रहूंगी कि नहीं, इसका नेट विथ बराबर रहेगा कि नहीं, उसके भी चांसेस 50-50% है, रहेगा या नहीं रहेगा। इस सिनारियो में अ सक्सेस रेशियो टू ट्रीट अ डिजीज विद 95% इज अ वेरी गुड सक्सेस रेशियो। और ये हम बार बार बोलते हैं, इट इज नॉट एन ऑपरेशन। आपको ऐसे डोनर को या फिर पेशेंट को ओटी में ले जाके और कुछ अलग से बोन मैरो का, बहुत लोगों को लगता है कि हम हड्डी का टुकड़ा निकालेंगे और हड्डी का टुकड़ा जोड़ देंगे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। ऐसा एक्चुअली नहीं होता। इट इज जस्ट इन्फ्यूजन ऑफ अ ब्लड प्रोडक्ट। अभी लोगों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं डोनर को लेके। तो कभी कभी हम बोन मैरो से भी स्टेम सेल्स लेते हैं, और कभी कभी जैसे कि हमने पेरिफेरल मेथड दिखाया उससे भी लेते हैं। बोन मैरो में हम तब लेते हैं जब डोनर बड़ा रहता है, पेशेंट छोटा रहता है, ब्लड ग्रुप सेम रहता है, बच्चा वेल चलेटेड है। बोन मैरो का फायदा ये होता है कि जीवीएचडी या ट्रांसप्लांट फेल होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। अब पेरिफेरल में अगर डोनर छोटा है और बच्चा बड़ा है, वेट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ब्लड ग्रुप मिसमैच है, उस हिसाब से हम पेशेंट टू पेशेंट ये डिसीजन लिया जाता है। कभी कभी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी भी होती है कि बोन मैरो से ही लेते हैं कोई इंस्टीट्यूट में, कोई इंस्टीट्यूट में पेरिफेरल ब्लड से ही लेते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी पोर्टफोलियो ऑफ द पेशेंट, हाउ द पोर्टफोलियो इज। डोनर अफेरेसिस अगर किया जाए, जैसे कि ये फादर है जो 12/12 मैच थे, तो आप देख रहे हो दो इंट्राकैथ थे, एक से ब्लड निकल रहा है, मशीन में घूम रहा है, और फिर दूसरे हाथ से वो बाकी का बचा हुआ जो ब्लड जो हमें सिलेक्ट करके ले लिया है, वैसा ब्लड हम वापस उस पेशेंट को दे रहे हैं। ये 300 ml जितना हम स्टेम सेल इन्फ्यूजन लेते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द पेशेंट। 3 ml मतलब 300 ml मतलब अमूल की दूध की थैली भी 500 ml की आती है। हम 3 ml 300 ml मतलब उससे भी कम ले रहे हैं, अमूल की दूध से भी, दूध की थैली से भी कम। अगर बोन मैरो हार्वेस्ट है तो डोनर ओटी में जाएगा, उनको बेशुद्ध किया जाएगा। द प्रोसीजर ऑफ बोन मैरो हार्वेस्ट हम हिप बोन से लेते हैं। उनको बिल्कुल भी याद नहीं रहता या बिल्कुल भी शुद्धि नहीं होती है कि ऐसा कुछ प्रोसीजर किया जाएगा। इट इज पेनलेस प्रोसीजर। पेशेंट को होश में आने के बाद भी पेन नहीं होता है। इट द प्रोसीजर रिक्वायर्स अराउंड 40 to 60 minutes, and we take around 300 to 400 based on ml, based on the weight of the donor। ठीक है, तो ये है दो मेथड जहां पे हम स्टेम सेल कैसे कलेक्ट करते हैं।
एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बेसलाइन काइमरिज्म। काइमरिज्म एक ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक माइथोलॉजी में पाया गया था, जहां पे आधा ये हिरन दिख रहा है आपको, आधा शेर दिख रहा है, आधा सांप दिख रहा है। बेसिकली ये हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं। आपके एडमिशन के टाइम पे हम डोनर का और पेशेंट का काइमरिज्म, बेसलाइन काइमरिज्म भेजेंगे। और फिर ट्रांसप्लांट, मतलब समझो कि आपका ट्रांसप्लांट 1 नवंबर को हुआ है, तो उसके 30 दिन बाद 1 दिसंबर को हम आपका डे+30 का काइमरिज्म भेजेंगे। डे+30, डे+60, डे+90, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद हमें आपका काइमरिज्म चाहिए। अगर मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरे भाई के साथ मेरा ट्रांसप्लांट, मतलब उसने मुझे डोनेट किया है, तो मैं डे+30, डे+60, डे+90 में मैं चाहूंगी कि ये जब टेस्ट आए तब 0% मेरे सेल रहे और 100% मेरे भाई के सेल मेरी बॉडी में रहे। अगर ये डे 90 तक 100% रहता है तो ही ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप डिस्चार्ज हो गए और आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल बोल दिया जाएगा। नहीं, आपको डे 90 तक परहेज रखना पड़ेगा। और अगर किसी भी मूवमेंट पे आपका काइमेरिज्म 95%, 93%, 98% है, तो वो मेरे लिए एज ए डॉक्टर बहुत ही वरीसम रिपोर्ट है। और मुझे आगे चल के वो ग्राफ्ट बचाना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये ट्रांसप्लांट फेल होने की कगार पे जा रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं डे 90, 100 डेज तक आपको ट्रांसप्लांट सेंटर के आसपास रहना है। इसीलिए छोटा से छोटा इन्फेक्शन, छोटी से छोटी बीमारी, ये काइमरिज्म की रिपोर्ट इफेक्ट कर सकती है। आपका ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेशियो हड़बड़ा सकता है। इसीलिए हम आपको तुरंत घर नहीं भेज सकते। 100% इज द वर्ड जो मुझे चाहिए। पोस्ट डिस्चार्ज जो है, आपको रूटीन फॉलोअप ओपीडी विजिट पे आना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा है, आप ओपीडी में मिलिए और चलिए जाइए। इनिशियली वीकली ओपीडी विजिट रहता है, फिर 15 दिन में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर साल में एक बार, ऐसे करके हम आपका ओपीडी विजिट बेस्ड ऑन योर क्लिनिकल प्रोफाइल। साइक्लोस्पोरिन ऐसी दवाई आपको 1 साल तक लेनी पड़ेगी। मेडिकेशन शेड्यूल हम आपको देते हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कुछ भी नहीं, मतलब 19-20 हो सकता है। जो हाइजीन आप बीएमटी में मेंटेन करते हो, वही हाइजीन आपको घर पे भी मेंटेन करना है। और जो डाइट हम आपको बताते हैं वही आपको खाना है। ये सारी चीजें पोस्ट डिस्चार्ज बहुत मायने रखती है वो काइमरिज्म का रिपोर्ट 100% लाने में। जो माँ बाप ये देख रहे हैं, ट्रांसप्लांट के बाद बच्चे को बुखार आ सकता है, रैश हो सकता है, कहीं पे काले नीले चट्टे पड़ सकते हैं, मुंह में छाले आ सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, ये सारी चीजें अगर होती है तो आपको आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 100 डेज तक आपको उस सेंटर के आस पास कहीं तो रहना पड़ेगा, ताकि आप आधे घंटे के अंदर अगर ऐसा कुछ हो तो आप आ सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या है अगर 95% सक्सेस रेशियो है और हम इतने अच्छे से बीएमटी कर रहे हैं तो? द प्रॉब्लम इज पैसा। हर पेशेंट या हर फैमिली इतनी सज्जदार नहीं रहती कि उनके पास इतना पैसा हो। नॉर्मली अगर 12/12 ट्रांसप्लांट है तो हमें 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं इस ट्रांसप्लांट के लिए। अगर आप एक ट्रांसप्लांट कैंडिडेट हो या आप चाहते हो कि आपके बच्चे का ट्रांसप्लांट हो, तो प्लीज डॉक्यूमेंटेशंस अभी से बनाना चालू कर दीजिए। बच्चे का आधार कार्ड, राशन कार्ड, तहसील के दाखिले में उनका नाम, उनकी एसबीटीसी कार्ड की रिपोर्ट, उनका डिसेबिलिटी कार्ड का रिपोर्ट, ये सारी चीजें लगती है हमें। और हमें ये सारी चीजों के लिए आगे तो ही हम, जो हमारे एनजीओज के साथ हमारी मदद की गई है, ये इट इज अ वेरी टीम वर्क। एक हॉस्पिटल, एक एनजीओ, एक मेडिकल सोशल वर्कर और पेशेंट की फैमिली मिल के डॉक्टर के साथ ये सारी टीम का काम करती है। इट इज नॉट अ वन मैन शो। कोई भी काम बिना टीम के नहीं हो पाएगा। और अगर पैसे चाहिए, पैसे जोड़ने हैं, पैसों का इंतजाम करना है, तो ये सारी चीजें हैंड इन हैंड रहनी है। हॉस्पिटल, एनजीओ, मेडिकल सोशल वर्कर तभी काम कर पाएंगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे। एंड 90% पेशेंट्स के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। आधार कार्ड नहीं है, तहसील का दाखला नहीं है, राशन कार्ड में नाम नहीं है, ये सारी चीजों में और 3 महीने लग जाते हैं।
गवर्नमेंट जो हमें काफी मदद करती है, बस हमें पता नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी मदद करती है। पीएम, जो हॉस्पिटल पीएम फंड से जोड़ी है, उनको पीएम फंड का पैसा मिलता है। सीएम फंड से 2 से 3 लाख की मदद मिल जाती है। एमजेपीजीवाई से चेलेशन वगैरह के लिए यूज हो जाता है। देर इज समथिंग कॉल्ड कोल इंडिया प्रोजेक्ट, अभी तो बहुत सारी हॉस्पिटल इसमें ज्वाइन हो चुकी है। ये थैलेसीमिया अगर क्लास 1 है, 12 साल के अंदर अंदर है, और फैमिली की इनकम 5 लाख पर एनम है और फुल मैच है, तो ये करीबन 10 लाख से 12 लाख की मदद करते हैं फॉर थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट। बाकी तो फ्री ब्लड हमें मिल रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वेस्टिगेशन और चलेशन मिल रहे हैं। डिसेबिलिटी कार्ड जिसके बारे में हम लास्ट टाइम बहुत बात कर चुके हैं, प्लीज उसके लिए एनरोल कर दीजिए। ये है डिसेबिलिटी कार्ड के फायदे जो हम लास्ट टाइम भी बोल चुके, मैं वापस से बोल रही हूँ कि अभी परमानेंट कार्ड मिल रहा है, बस और ट्रेन का ट्रैवल फ्री है, एक्स्ट्रा 20 मिनट, ये सारी चीजें हम बोल चुके हैं। अभी हर एक सिटी का एक थैलेसीमिया सोसाइटी रहता है, पुणे का भी एक थैलेसीमिया सोसाइटी पुणे चैप्टर है, जो हर एक ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख की मदद करती है। अगर आप पुणे से हो तो प्लीज इस सोसाइटी में एनरोल कीजिए, ताकि आप इन सब की फायदे की बात कर सके। ये पैसे आपका रोजगार चालू करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, चलेशन के लिए, लुको फिल्टर के लिए, ये सारी चीजें ये करते हैं। ये हमारे थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं जो ट्रांसप्लांट होके खुश रहे। अभी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें ब्लड डोनेट करना है, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के कैंप करने हैं, एचएलए रजिस्ट्री मेंटेन करनी है। ऐसे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, गवर्नमेंट मदद कर रही है। नीरज त्रिवेदी सर तो अवेयरनेस स्प्रेड कर ही रहे, उनके पोर्टल को, हमें उनके पोर्टल को ज्वाइन करके और अवेयरनेस स्प्रेड करना है, और धीरे धीरे थैलेसीमिया मुक्त भारत बनाना है। अगर थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट नहीं भी होता तो ऐसा नहीं है कि इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास बहुत लोग हैं जो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन भी कर रहे हैं, और वो अभी डॉक्टर है, आईएएस ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर्स है, काफी अच्छा लाइफ वो जी रहे हैं। डेफिनेटली बहुत हिम्मत का काम है एक हीलिंग को ये करना, बट वी विल हैव टू शो करेज, और करेज धीरे धीरे करके ही बनता है, एक इंसान का काम नहीं है। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली वंडरफुल प्रेजेंटेशन मैडम, एज यूजुअल आई थिंक। थैंक बहुत ही डिटेल्ड, एकदम क्लियर आपने समझाया पूरे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। और मैंने ऑडियंस के लिए चैटबॉट में लिंक भेजा है हमारे कम्युनिटी का, जो ऑनलाइन कम्युनिटी पोर्टल है, जहाँ पे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अगर आप एनरोल कर, तो हमारा 100 डे का सपोर्ट रहेगा आपके लिए। आपके हम मतलब हमारा एक अलग टेलीफोन का लाइन ही है उसके लिए, जहाँ पे आपको कोई प्रश्न उठता है, कोई डाउट होता है, या कुछ पूछना होता है, या फिर क्या खाना देने का बच्चों को, तो ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एक बीएमटी पेशेंट्स हैंडबुक भी है, जो फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। और एक बात मैं कहूँगा, ये पोर्टल में जितनी एक्टिविटीज हैं, ओके, चाहे वो योगा हो, प्राणायाम हो, फिजियोथेरेपी हो, या फिर आपको 1-to-1 काउंसलिंग हो, जितना भी होगा, ये पूरा पेशेंट्स के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग को इसके लिए सीएसआर मिल रहा है, और ये पूरा पोर्टल हम उसी से चला रहे हैं, तो पेशेंट के लिए कोई भी कॉस्ट इसमें एब्सोल्युटली नहीं है ना। तो मैम, मेरे 3-4 सवाल थे, इफ यू अलाउ मी, आई आई काइंड ऑफ यस आस्क। यस यस। फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, कॉर्ड ब्लड इज नॉट एन ऑप्शन फॉर थैलेसीमिया पीपल, राइट? सर जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा सेल डोज जो रहता है, जो हम 300 ml 400 ml जो डोनर से मैं ब्लड ले रही हूँ, उसको एक आगे टेस्टिंग होता है सेल डोज के लिए। तो वो ओके। एक ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल करने के लिए 4 से 10 के बीच में चाहिए। ओके। मतलब 10 × 10⁻⁶ सेल्स चाहिए मेरे को, बाकी के ओके। 6 जीरो आप लगा दीजिएगा। श्योर। जो कॉर्ड ब्लड है, उससे हमें सेल डोज अराउंड 0.2 या 0.3 का मिलेगा।
हाँ, ओके। तो वो मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उसके तो इट इज नॉट एन एडिक्वेट डोज। अगर जैसे कि अदर कंट्रीज में होता है कि जैसे कि रैंडम डोनर्स का हम प्रिजर्व करके दो तीन ये कर सकते हैं, दैट इज एन एक्चुअली थिंग विच कैन नॉट बी डन। सो हम फिलहाल तो कॉर्ड ब्लड का हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ ओके। की बेसिक रिक्वायरमेंट हमें सेल डोज ही नहीं मिल रहा। कभी कभी तो राइट। सर ऐसा होता है कि हम अफेरेसिस करते हैं, हेल्दी डोनर होता है, बट फॉर सम रीजन वो मोबिलाइज नहीं कर पाता, तो राइट। हमें एक या दो का ही डोज मिलता है, फिर हमें वापस से प्रोसीजर रिपीट करनी पड़ती है। फिर हम 2 दिन का ब्लड उनको साथ में दे देते हैं टू मेक अ कंबाइंड डोज ऑफ मोर देन 4 to 5। ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट। ठीक। हम्म। और काइमरिज्म जो 100 डेज में आपने जो बात किया था काइमरिज्म, तो इसमें अगर एलोजेनिक ट्रांसप्लांट है मतलब किसी और का, और अगर ब्लड ग्रुप भी अलग है, तो क्या हमारा ब्लड ग्रुप भी चेंज हो जाएगा या हमारा भी यस सेम यस, रहेगा? आपका ब्लड ग्रुप भी चेंज हो जाएगा, आपकी पूरी काया हमारा पलट, ब्लड ब्लड ग्रुप। की तो पूरी काया पलट कर देते हैं। अच्छा, मतलब एब्सोल्युटली न्यू ब्लड विल कम इन दैट। यस 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 यस। ओके, fantastic. And this chimerism का, is it the same as the fish test that we do? जो It is the fish method is हम, the same, Thames. Yeah, okay, the method is the method is same. the same. This thing, yeah. Hmm. It is a blood sample which has to be taken day 30, day 60, or day 90. Right, right. Hmm. Okay, fantastic. And last, I think one point which I didn't see in the presentation, और या मे बी ओवरसाइट में हो गया होगा, हमारा वैक्सीनेशन का शेड्यूल हमें वापस हमें वैक्सीन करना पड़ेगा, राइट? आई थिंक Yes, फॉर ऑल द पेशेंट्स गोइंग थ्रू ट्रांसप्लांट, जिन्होंने बचपन yes, में भी अगर वैक्सीन लिया है, तो वो पूरा वैक्सीनेशन हम नए ब्लड के साथ रिपीट करेंगे, करेक्ट? तो yes, उसका yes. शेड्यूल नॉर्मली क्या रहता है थैलेसीमिया सो ट्रांसप्लांट्स में? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि आपका, इफ यू डेफिनेटली यू डोंट रिमेम्बर, पेरेंट्स विल रिमेम्बर कि बीसीजी वैक्सीन तो बर्थ पे दिया जाता है, एंड राइट। देन फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, ये करके अलग अलग हेपेटाइटिस बी, ये सारी चीजें हम देते हैं। सो राइट। व्हाट वी डू इज देयर इज समथिंग कॉल्ड हेक्साजिम, कि जो 6 वायरस का हेक्सावेलेंट डोज दे देती है। तो टू करेक्ट। वन डोज, 2 डोजेज 1 मंथ अपार्ट देना पड़ता है, एंड वी आर ओके। कवर्ड विथ ओके। इट। ओके। या ठीक है। तो वो शेड्यूल कब आता है, मतलब हम कब डिसाइड करते हैं कि अभी या पेशेंट रेडी सो है आफ्टर वैक्सीनेशन के वन लिए? ईयर ऑफ योर ट्रांसप्लांट, मतलब अगर मेरा 1 नवंबर 2024 में ट्रांसप्लांट हुआ है, सो बाय राइट। 1 नवंबर 2025 मेरा इम्यूनोसप्रेशन कम होके बंद हो जाएगा, ओके। एंड आफ्टर योर इम्यूनोसप्रेशन इज डाउन, बंद, हम्म। then I will start your vaccination after 1 year of your transplant. ओके। बट उसका कोई पीरियड है कि इम्यूनोसप्रेशन बंद होने के 30 दिन बाद ही हम After क्या? a month, you can do so. आफ्टर अ मंथ वी कैन डू, राइट? Hmm. ओके, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ओके। या आई थिंक दिस इज एक्सेलेंट मैम इन टर्म्स ऑफ पीडियाट्रिक। एक मुझे क्वेश्चन था न्यूट्रिशन का, अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं Hmm. और उनको खाने पीने का अगर प्रॉब्लम होता है न्यूट्रिशन का, तो डू वी हैव लाइक द स्पेशल सॉल्युबल न्यूट्रिशन Yeah, yeah. So the ऑप्शंस? dietitian take comes to BMT twice a day, and ओके। he, with the liking of the patient and the requirement of the patient, वो podridge. And ओके। yeah, we do allow ice cream and popcorn also in our BMTs. ये करके कि ओके। they can eat it. Yeah. So that can be tailored made. So अच्छा, we have दैट कैन even बी। allowed podridges, we have allowed moong dal halwas, and that is a part of the BMT diet, जहाँ पे हम calories करेक्ट। and protein intake ये कर देते हैं. We make sure they, if they are non-vegetarian, if they want to have boiled egg, we prefer कि वो boiled egg खाए, podridge खाए, ice creams खाए, because ice cream also helps in mucositis. राइट। So it has an added benefit of everything. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। Yeah. वाह, बट द आइसक्रीम हैज टू बी सो दिस Yeah, थिंग yeah. दैट, मतलब We make sure about all that. Yeah. फैंटास्टिक, Mhm. फैंटास्टिक। दैट इज Mhm. ग्रेट, दैट इज ग्रेट। ठीक है। तो आई थिंक माय क्वेश्चंस आर ओवर। अभी मैं Yes. ऑडियंस को, अगर कोई भी क्वेश्चंस है, आप प्लीज अनम्यूट करके या अपना वीडियो चालू करके पूछ सकते हैं। हमारे पास और 10 मिनट है, तो आपको जो भी प्रश्न है प्लीज अभी पूछ लीजिए, मैम है। और क्या कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता है, जो भी सवाल मन में है पूछ लीजिए। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू आस्क। वी हैव अ फीडबैक दैट दिस हैज बीन एन एक्सेलेंट टॉक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस।
थैंक इतनी सारी ऑडियंस में से किसी को भी कोई प्रश्न है, कुछ है तो पूछ सकते हैं प्लीज। ओके, आई थिंक वन मोर यू नो इंफॉर्मेशन आई थिंक हम लोग को शेयर करनी चाहिए कि अगर हमारे फैमिली में अगर एचएलए मैच नहीं मिलता है यू। तो डोनर ढूंढने की प्रक्रिया क्या है और वो कैसे सो होता है? सो बेसिकली देर इज सिंपल लॉजिक है कि अगर मैं ब्लड, मेरे को ब्लड चल रहा है और आज मुझे मेरी स्पेसिफिक ब्लड बैंक से ब्लड नहीं मिला है, तो आई राइट। विल सर्च फॉर द सेकंड ब्लड बैंक और थर्ड ब्लड बैंक और द फोर्थ ब्लड बैंक. नाउ करेक्ट। you also know there is an app for finding the blood where how much blood is available in which bank, ये करके. राइट। So basically the HLA also works in the same thing. अगर आज कल आपका ट्रांसप्लांट का मतलब योर फैमिली इज वांटिंग टू डू ट्रांसप्लांट बट यू डोंट हैव अ डोनर, इन दैट हम्म। केस अगर कोई एक्स पेशेंट मेरे पास आएगा और बोलेगा कि मैडम मेरे पास नहीं है, कि मैं डोनर नहीं है मेरे पास, तो कैन वी डू अ मैच अनरिलेटेड डोनर मड ट्रांसप्लांट. तो उसमें क्या होगा कि आई विल टेक द HLA रिपोर्ट, आई विल फिल अ फॉर्म, आई विल मेल अ पर्टिकुलर पर्सन इन दैट दात्री और DKMS, और वहां पे हम लोग डोनर ढूंढेंगे. दे विल सर्कुलेट अ वेब सर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। और वो उस HLA का मैच्ड पर्सन ढूंढेंगे. बहुत हम्म। टाइम हमें मड डोनर नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी जैसे कि अभी एक पेशेंट के साथ हुआ, ही है 627 मैच डोनर्स. तो अभी वो सिक्स डॉक्टर हंड्रेड एंड बैठेगा, ट्वेंटी सेवन तो अभी वो डॉक्टर बैठेगा. How lucky is that person? Because the match is 1 in million, and this guy's got 627. Oh wow, that's amazing. Yeah. Okay. मतलब द सिस्टम गॉट हैंग टू प्रोड्यूस दैट रिपोर्ट फॉर 3 days. Wow. Yeah. Okay. So in that case, the donor, matlab the doctor, like me and Dr. Mhm. Shweta will sit with our heads in place, and then we will Correct. search कि एज कितना है डोनर का, ब्लड ग्रुप कौन मैच Mhm. कर रहा है, Mhm. बाकी के वायरल Mhm. मार्कर्स का, ये सारी चीजें. Right. फिर अगर Right. समझो कि मुझे मेरा ट्रांसप्लांट कराना है, एंड देन Mhm. आई से यस, देन द डॉक्टर विल राइट अ मेल दैट प्लीज आई वांट दिस डोनर टू डोनेट, कैन यू प्लीज आस्क द अवेलेबिलिटी ऑफ द डोनर. लेकिन फिर समझो कि आप डोनर हो और आपको Mhm. मेल आता है कि नीरज सर, देर इज वन मैच एंड शी रियली रियली द यंग गर्ल रियली वांट्स अ ट्रांसप्लांट, आर यू अवेलेबल. देन यू आर सेइंग नहीं नहीं, मैं दिवाली से पहले नहीं कर सकता, मैं दिवाली के बाद करूंगा. Because he has to take that injection, he has to go to the nearest apheresis center Correct. and do that Correct. apheresis procedure. He's not Yeah. getting any money, not mithai ka dabba, nothing. He's just getting a thank you card. You know, Correct. it is just Yeah. a voluntary thing he's doing to save a life. Correct. एंड फिर अगर आप हाँ बोलते हो तो फिर आपके वायरल मार्कर्स टेस्ट हो गए. Okay. ओके, आपके HIV, HBS, HG, HCV, CMV, ये सारी 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 टेस्ट होगी, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू बी फिट टू डोनेट द मैरो, राइट, Sure. द स्टेम सेल्स. फिर वो Sure. सारे लैब के रिपोर्ट्स हमें डॉक्टर के पास आएगी, डॉक्टर चेक करेगा इफ एवरीथिंग इज ओके. देन यू विल Mhm. से कि दिस इज माई अवेलेबल डेट, आप बोलोगे मैं 1 नवंबर को देना चाहता हूँ. So 7 days Right. prior to 1 November, I will get admitted in a transplant center. The patient will get admitted to the transplant center. और Mhm. प्रोसीजर Mhm. चालू होगा. फिर आपका एक्स जगह पे, वी डोंट नो वेयर यू आर, हु यू आर जस्ट एन ईमेल अवे काइंड ऑफ अ पर्सन. और Right. फिर आपका GCSF चालू होगा, आपका अफेरेसिस होगा. आपका अफेरेसिस हो गया, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट इज इन, द डोनर इज इन चेन्नई, और Ah. अफेरेसिस चेन्नई में हो रहा होता है. ओवरनाइट वो फ्लाइट में स्टेम सेल आते हैं, एंड Right. देन नेक्स्ट दिन हम उनको चढ़ा देते हैं. बट द कॉस्ट of finding a donor, maintaining this database, doing all these tests, selecting a apheresis center, doing an apheresis is plus 9 to 10 lakhs from the Right. basic transplant cost. Absolutely. Yes. Absolutely. ठीक Mm. है. सो और एक क्वेश्चन इसके ही रिलेटेड था. नाउ फॉर एग्जांपल, I belong to a particular family lineage. Okay. Mm. तो फैमिली, हमारा जो मामा चाचा काका भाई बहन आत्या वात्या सबको मिला के व्हाट आर द चांसेस, और आर दे सेम ऑफ फाइंडिंग एनी अदर मैन? मतलब हमारे फैमिली ट्रेट में चांसेस मिलने के ज्यादा होते हैं या नहीं, ऐसा नहीं है? So this is the most common question has been asked. Okay. ओके. Okay. So me matching with my parents is less than 1%. करेक्ट.
I don't know Correct. about others. Okay, Sure. it is as random as a merge search. So it has Second, randomized, right? huh. And Okay. since one HLA test can cost you 5 to 10,000, Yes, अगर मैं मेरे आत्या मामा चाचा फूफा सबको चेक करने लगी उसमें तो मेरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा. I agree. I agree. So in a country or anywhere in the world, we will have to see how cost benefited this idea is. Mm, Hmm. agree. Agree. Got it. Got it. This is very interesting. In fact, there's one question on the chat box saying, what is the minimum age for transplant and what is the maximum age for thalassemia for So the transplants? maximum we see, it is an institutional policy. The maximum we have gone is 14 years Okay. till now, Mm-hmm. because the ferritin and the risk of Mm-hmm. hepatitis and everything, Right. uh, and the least 2 years, ताकि Okay. बच्चा 2 years. कॉपरेट कर पाए, हमें आगे बात कर पाए, ये सारी चीजें. Right. Right. हम्म. Sure. Okay. So I hope the audience has got the answer for most of the questions. Uh, yeah, I think that's it. I think from our end, ma'am, in terms of थैंक यू सो मच. so this has been an absolutely wonderful presentation. बहुत clarity मिली है हमें भी. और आई थिंक आई एम श्योर जो भी सुनेगा आगे उनको भी काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी. और मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस की कि हम लोग ये यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पे. एंड वी विल शेयर द लिंक्स ऑन आवर पोर्टल. तो हमारे कम्युनिटी पोर्टल में आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको जितने भी नए नए वीडियोस हैं इसके बारे में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. या सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इनिशिएटिव. मतलब No, I आई think this एम. is absolutely necessary. And I'm a cancer survivor. I'm a leukemia survivor. So I know what it means to people. And I have gone through a bone marrow transplant in 2016. Yes, So, I think this is so important. And we have these conversations and more conversations yes, so that yes. people can benefit from this. So, थैंक यू सो yeah, so मच. that's it, ma'am. Thank you so much for थैंक यू सो मच.